Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. We were discussing the chapter sets from NCERT Exemplar. So we had done till question number 31, I guess, and now we will move ahead with that. So I've given you a brief overview of what the sets chapter is all about, what we try to study in this chapter, what is union, what is intersection, all those we have read about, and we have solved some good questions till 31, and now we will move ahead with 32. So I guess you must have understood till now, and now I am moving ahead with the next question. 32. Okay, so let's read the question. It is saying let x1, x2 up to x5. 1 second. Let x1, x2 up to x5 with observations with mean m and standard deviation k and standard deviation s. The standard deviation of the observations kx1, kx2 and so on. So basically हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपनी हर एक ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया है and then we are asked to calculate the new standard deviation. Okay, so let's do this one. So see, firstly what we are given mean. So what is mean? Mean is nothing but sigma of all these x's upon total, which is 5. So we can calculate the sigma xi value, which would be 5m. So basically what I'm saying is sigma xi divided by 5 is equal to m. So basically this thing is equal to 5m. This thing is equal to 5m. ठीक, तो ये तो हो गया अपना sigma xi. And we know that standard deviation का formula is equal to under root of sigma xi square sigma xi square divided by 5 minus sigma xi divided by 5 whole square. Okay, so this is the formula for standard deviation as we know it. And now since our each term is multiplied by k, so from here k square will come out to be common, so we can take k square out. I'm calculating new standard deviation, no, that's why. So k square will come out, and what will be left? We will be left with sigma xi square by 5. Similar fashion, यहाँ से भी k would come out, and we will get k square times sigma xi square by 5 minus sigma minus this is the mean का square basically. So new mean में क्या होगा? K square multiply हो जाएगा basically. So k square हमने common ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? It will be m square. Okay, and from here we can see that this thing sigma xi square by 5 minus m square is the old standard deviation which we can take as sigma. So basically our new standard deviation is multiplied by under root of k square, which is k. So basically our new standard deviation would come out to be k times sigma. मतलब क्या होगा? Whenever we multiply all the observations by some number, let's say k, the standard deviation is also multiplied by the same number. So basically अपना जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C part. तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? C part is our right answer. Okay, so this was our first question. Moving ahead to question number 33. Let x1, x2 up to xn be n observations, and let w1 equal to lxi plus k for I this and this, where l and k are constants. Then the mean of xi is 48 and the standard deviation is 12, and the mean of wi is 55 and the standard deviation is 15. Then the value of l and k is okay. तो अपन लोग क्या करें इसमें? अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है कि जो wi है, wi is equal to some lxi plus k is equal to l times xi plus k. Okay, so this is given to us. W is equal to lxi plus k. So what we can do now is we are also given means of xi and means of wi. So
let's take the mean equation. So how will we take the mean equation? I will take here mean, wi mean is equal to L is a constant, so it will remain like this. And I will also take the mean of xi's so that the equation remains balanced plus k. Okay, so this equation is also correct, and I have written this equation from this one. So what we are given the mean of wi's, I think so. It is 55. So put down the values. It is 55 is equal to, are we given with the L? No, we have to find out L. And mean of xi we are given is 48. So 40, it would be 48L plus k. It would be 48L plus k. Tick. So this is our first equation, and one equation we already know using that W and K1, because okay, so we can use these two 31st and 32nd derivations to prove this thing. See, the standard deviation of W and standard deviation of this thing. We know that when we add some number to any element, standard deviation remains same. So plus k would not give any effect, मतलब प्लस के से कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेसिकली. अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब भी अपन किसी सेट ऑफ एलिमेंट्स में कोई नंबर ऐड करता है तो स्टैंडर्ड डिविजन वोंट चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे प्लस के की वजह से स्टैंडर्ड डिविजन में कोई फर्क नहीं आएगा. बट ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल अपन ने यहाँ पे देखा कि जब अपन सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन आवर स्टैंडर्ड डिविजन ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर. सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविजन W का होगा दैट वुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय L. Why? Because we are multiplying xi's with L. So basically standard division will also be multiplied by L. Okay, so if we take standard division on both sides, what we will get standard division of W's is equal to L times standard division of xi's, and plus k would not give any effect as we have proved from question number 31. So basically our next equation would be standard deviation of wi's is equal to L times standard deviation of xi, sorry. Tick. So what is standard deviation of wi? Are we given with that? Yes, it is equal to 15. So 15 is equal to L times standard deviation of xi, which is given to us as 12. So it would be equal to 12L. So we have two equations, two variables we can easily solve. From here we will get L to be equal to 15 by 12, which is, I guess, 15 by 12, which is 1.25. 1.25, and we will put this L in this equation, so we will get k also. So from here we will get k to be equal to -5. Okay, so basically we were asked this only, so our answer would be A part. No, not A part. Yes, A part. So our answer would be A part. I think you got that. I just used the standard 31st and 32nd one derivations to solve this problem. Basically what I did is, when you multiply something, our standard deviation also gets multiplied with the same number. So here would be L times standard deviation of x equal to standard deviation of W. And adding does not cause any change to standard deviation. That's why it would remain same. One second equation I used for the mean because I was given the data regarding means. So that's why I used that. Okay. Moving ahead, question number 34. What is given to us? It is saying standard deviation for first 10 natural numbers is. ये तो अपन ने अभी उस समय कैलकुलेट किया था इसका फॉर्मूला. What was the formula? Formula was, if you remember, because it is first 10 natural numbers, so there is no the basically जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? जनरल फॉर्मूला, one second. जनरल फॉर्मूला अपन ने ये निकाला था ना कल in last session. We have calculated the general formula for standard deviation to be equal to d times
अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। बट सिंस यहाँ पे अपने को बोला गया है कि अपने को नेचुरल नंबर्स का निकालना है, नेचुरल नंबर्स के केस में तो d1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी d तो 1 ही हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दो। और अपने को चाहिए फर्स्ट 10 नंबर्स का, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। बेसिकली इट वुड बी 100 minus 1/12. Okay, so it will be root of 99/12, which will come out to be root of 8.25. Root of 8.25. Okay, so that thing would be equal to 2.87. Okay, so this is the final answer to this problem. This was easy. You have to just use the formula which we derived in the last session. Okay, so I guess you have understood it. Moving ahead, question number 35. Question number 35. Okay, so it is saying consider numbers 1 to 10. If 1 is added to each number, the variance of the numbers so obtained is. This is again from the same we have did in 31st and 32nd. We have to use the standard deviation calculation for this one, because variance is nothing but the square of standard deviation basically. So अपन लोग देख रहे हैं कि अपन लोग 1 को we are adding 1 to each number. तो अपने को पता है कि जब अपन किसी एलिमेंट्स में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन वुड रिमेन सेम। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपन लोग इसमें सभी एलिमेंट्स में जब हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा तो अपना वेरिएंस में चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली। तो अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हो रहा तो मेरा वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि मैं जब किसी नंबर को ऐड करता हूँ तब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन वुड रिमेन सेम, और जब मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ हर नंबर में, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा तो मेरा वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा। तो मेरा वेरिएंस मैं 1 को ऐड किए बिना निकालूंगा तो भी सेम ही आएगा। तो बेसिकली मेरे को इन 10 नंबर्स का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था मेरा, 2.87 आया था फर्स्ट 10 नंबर्स का। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 2.87 बेसिकली। तो बेसिकली जो इसका मेरा वेरिएंस आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस is nothing but square of standard deviation is equal to square of standard deviation। और ये मैंने निकाल लिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था मेरा 2.87, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2.87 का स्क्वायर। वाई? बिकॉज नंबर ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इट वुड बी 2.87 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8.25, ठीक। सो ये हो जाएगा 8.25। सो बेसिकली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 36। This saying consider the first 10 positive integers and if you multiply each number by -1, okay, अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका तो ध्यान रखना, and then add 1 to each number, then the variance of numbers to obtain would be. Okay, तो इसमें पहली बात तो बोलिए फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने अपने को। तो बेसिकली 1 to 10 लेना है अपने को। तो 1 to 10 का पहले तो जो मुझे डेटा पता है मैं वो लिख लेता हूँ। 36 वाला है ना ये। सो मेरे को पता है 1 to 10 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने निकाल लिया, वो हर क्वेश्चन में यूज आ रहा है। दैट इज नथिंग बट 2.87। That is equal to 2.87. Standard deviation is equal to 2.87. Okay, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मेरे को बोला है कि मैं हर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है जब भी मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली क्या होता है वो k टाइम्स पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली यहाँ पे k है -1 और पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.87। -1 मल्टीप्लाई बाय 2.87 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2.87, ठीक है। तो ये हो जाएगा नया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिखता हूँ -2.87। इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद बोल रहा है कि देन आई एम एडिंग 1 टू ईच नंबर। अब मैं हर नंबर पे 1 ऐड कर रहा हूँ।
तो मेरे को पता है कि जब मैं किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता. माय स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम व्हेन आई एम एडिंग अ नंबर टू प्रीवियस वन. तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन -2.87 ही रहेगा. अब मेरे को चाहिए इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए मैं वापस इसका स्क्वायर कर दूंगा. वेरिएंस इज इक्वल टू -2.87 का स्क्वायर -2.87 का स्क्वायर. That would again come out to be 8.25. 8.25. ठीक. तो इसका आंसर भी 8.25 हो गया, मतलब ए पार्ट इसका राइट आंसर. आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपन ने 31 कर दिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन इजी है. ओके, सो दिस वाज माय 36th. नाउ मूविंग ऑन टू 37th वन. 37th में क्या बोला है? One second. The following information relates to a sample of size 60. Okay. तो मुझसे वेरिएंस पूछा है ना, मैं सीधे सीधे वेरिएंस का फॉर्मूला लिखता हूँ. वेरिएंस V इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा. इट वुड बी सिग्मा x स्क्वायर बाय टोटल n माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा x बाय n. ये होता है ना फॉर्मूला. तो अब मैं निकालता हूँ, तो मेरा वेरिएंस क्या हो जाएगा? मेरा वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा एक्स का मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18,000. यहाँ पे सिग्मा है वो बस दिख नहीं रहा एक्चुअली में. इट वुड बी 18,000 डिवाइड बाई n. n कितना है? n है 60 माइनस सिग्मा एक्स दिया हुआ है 960. 960 डिवाइड बाई 60. 960 डिवाइड बाई 60 कितना हुआ? 18,000. ओके, 960 divide by 60 square. Okay, so it will come out to be this will cancel with this one. It would be 6 3 is 18, so 300 minus minus this, and this will cancel, and this will be 16 times, so 16 square is 256 basically. So it would be 300 minus 256. So answer would be 44. Okay, so 44 is my right answer, which is D part. So 37 का answer हो गया D part. ठीक. So in this way I had done question number 37 also. So moving ahead to question number 38. So in 38 it is given that coefficient of variance of two distributions are 50 and 60 respectively, and their arithmetic means are 30 and 25 respectively. Then the difference of the standard deviation is. Okay, तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है. नाउ अपने को पूछ रहे हैं कि अपने को डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था जब अपन लोग लास्ट टाइम पे वो कैलकुलेट कर रहे थे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसके मार्क्स इतने ज्यादा स्टेबल है. जब अपन ने वो वाला क्वेश्चन कैलकुलेट किया था तो अपन ने इस टर्म का इस्तेमाल किया था. सो नाउ वी आर गोना कैलकुलेट दिस. सो मैंने आपको बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100. बेसिकली क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज सिग्मा डिवाइड बाय मीन व्हिच इज x बार into 100. Okay, so this is my coefficient of variance. We have a coefficient of variation, जो भी आप बोलना चाहे. अपने को दिया हुआ है कि दो डिस्ट्रीब्यूशन का 50 and 60 है, तो एक का है 50, तो 50 is equal to, मुझे सिग्मा नहीं दिया हुआ ना. ओके, तो मैं इसको मान लेता हूँ सिग्मा 1, और 50 वाले का जो मीन है वो है 30 into 100. Okay, so this is my first equation. And second one would be it would be 60 equal to sigma 2 divided by 25 into 100. Okay, so this would be sigma 1 sigma 2. So I can calculate sigma 1 sigma 2 from here. It would be 50, it would be 2, so my answer would be 15. So sigma 1 is 15
and sigma 2 is, we'll get 4 from here, so 60 by 4 is 15. So sigma 2 is 15. So basically the difference of the standard deviation is coming out to be 0. So इसका आंसर हो जाएगा 0, which is option number A. So A part is our right answer. This A part is our right answer. Okay. So ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे. Oh sorry, A part for this one. Sorry. Let it be. So moving on to 39th. 39th. So what it is saying? It is saying the standard deviation of some temperature data. Standard deviation अपने को बताना है किसी temperature data का दिया हुआ है 5. If the data were converted to Fahrenheit, the variance would be. तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो थोड़ी बहुत साइंस आनी चाहिए. मतलब अपने को पता होना चाहिए कि Fahrenheit और सेल्सियस में कन्वर्जन क्या होता है. So it is basically C by 5 minus 32 or plus 32. 1 second, let me check. C by 5 and it will be plus 32. Okay. And here 9 is also there. 9C by 5 plus 32. Okay. So this is my conversion. So basically अब मेरे को चाहिए कि standard deviation Fahrenheit में कितना होगा. तो वापस अपन ने वही 31 32 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे. मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा standard deviation मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 by 5 से, और 32 ऐड करने पे चेंज नहीं होगा बेसिकली. So basically जो मेरा standard deviation होगा वो होगा 9 by 5 times standard deviation of C. Okay. So that would be 9 by 5 times standard deviation of C, that is equal to 9 by 5 into standard deviation of C would be 5. So basically it would come out to be equal to 9. ठीक है. अब मुझसे बोला है वेरियंस बताओ, तो वेरियंस मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. सो वेरियंस क्या होता है? वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. ठीक. So that is equal to 9 square, which is 81. So 81 is my variance. Okay. And this is A part only. So we were correct actually. So A part is my right answer. This. Okay. So this was my 39th question. Now moving on to 40th one. 40th one में क्या बोला है अपने को? So they are basically saying फिर इन द ब्लैंक्स है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में ऊपर क्या आता है. तो ये तो मैंने आपको बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के ऊपर साइन डिवीजन आता है. बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्टैंडर्ड डिवीजन पर आता है एसडी, स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा से. सिग्मा डिवाइड बाय मीन व्हिच इज एक्स बार, मतलब इनका सिंबल ये है, इनटू 100. ओके. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. देन लेट्स कम ऑन टू 41th वन. 41th में क्या बोला है? 41th में मुझे बोला है इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ n वैल्यूज, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ n वैल्यूज देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, मेरे को मीन दिया हुआ है और मुझसे पूछा है कि सिग्मा एक्स आई बार माइनस एक्स is always equal to what. और नेक्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा कि इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा. तो क्या कर सकते हैं अपन? अपने को बोले कि मीन एक्स बार जो है मीन एन वैल्यूज का, एक्स बार इज द मीन ऑफ एन वैल्यूज, तो एक्स बार बेसिकली मीन है. तो जब मैं बेसिकली ये चीज इसको मैं ऐसा देख सकता हूँ कि जैसे कि मेरे को पता है, मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है कि एक्स बार इज इक्वल टू मीन ऑफ n वैल्यूज. ये n वाला n वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को जो बोला है वो अपने को n तक बोला है. मीन ऑफ n वैल्यूज, सॉरी, मीन ऑफ n वैल्यूज, मीन ऑफ n वैल्यू. ओके. सो दिस थिंग. ठीक है. तो इसका जो एक्स वाई माइनस एक्स बार से पूछा है, तो अपने को पता है कि जो मेरा एक्स वाई माइनस एक्स बार आता है वो बेसिकली मैं तब निकालता हूँ जब मेरे को डेविएशन निकालना होता है बेसिकली. तो सम ऑफ ऑल n टर्म्स जो इसके होंगे सिग्मा एक्स आई के, वो जिसको जब मैं डिवाइड करूंगा इनसे, आई विल गेट एक्स बार. सो बेसिकली डिफरेंस ऑफ बोथ दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, आई गेस. इसमें
what we can do here is see इसको अगर मैं वैसे तो मुझे I think there would be some shorter way, but let me do it this way. This is given sigma xi minus x bar, okay? So इसमें क्या है ना, मैं इसको सिग्मा को अलग अलग कर लेता हूँ, let's say. So it would be sigma xi माइनस सिग्मा माइनस एक्स बार, मतलब एक्स बार से पहले कॉमन ही होगा तो सिग्मा एक्स बार, ठीक। तो मुझे पता है कि जो मेरा सिग्मा एक्स आई होता है उसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे को पता है जो मेरा मीन होता है एक्स बार वो होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स एन मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, ठीक है। और सिग्मा एक्स बार तो कांस्टेंट है, तो एक्स बार बाहर आ जाएगा, इट वुड बी एक्स बार टाइम सिग्मा वन, एंड सिग्मा वन इज नथिंग बट एन ओनली, मतलब वन को मैं एन टाइम्स जोड़ रहा हूँ, इट इज ऑल्सो एन एक्स बार। सो बेसिकली दिस थिंग ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो, जो मैं आपको इंट्यूटिवली बोल रहा था, बट दिस इज द वे वी कैन प्रूव इट। सो बेसिकली फर्स्ट वाले का आंसर जीरो आएगा, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। फिर अपन लोग चलते हैं आगे, अगले पार्ट में मुझसे पूछा है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसको अपन लोग कैसे कर सकते हैं। वी नो दैट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स इज जीरो, एंड हियर वी आर आस्क्ड अबाउट इट्स स्क्वायर। सो इसमें होता है, इसमें दिक्कत ये आएगी कि वहां पे एक्स आई माइनस एक्स बार में वी आर गेटिंग सम एक्स आई विच वुड बी लेस देन एक्स बार, एंड वी आर गेटिंग सम एक्स आई विच वुड बी लेस देन विच वुड बी ग्रेटर देन एक्स बार, सो वो सब टर्म्स ऐड होके जीरो हो जा रहे थे। बट हियर सिंस वी आर डूइंग स्क्वायर, सो बेसिकली ऑल दोस टर्म्स विच वुड बी नेगेटिव विल आल्सो गेट पॉजिटिव। सो बेसिकली अपने को बोला गया है कि ए हैज एनी वैल्यू अदर देन एक्स बार, तो मुझसे एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर के से रिलेशन में पूछा है कि वो ग्रेटर होगा कि लेस देन होगा, मुझसे ये बोला है। सो इट वुड बी लेस देन एक्स आई माइनस ए बार माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज सम कांस्टेंट। सो बेसिकली एक्स आई माइनस ए स्क्वायर को मैं सिग्मा एक्स आई माइनस ए स्क्वायर को मैं एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा सिग्मा एक्स आई माइनस ए स्क्वायर है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। सिग्मा एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर है, ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा एन टाइम्स, क्योंकि एक्स आई माइनस ए स्क्वायर तो मतलब सिग्मा एक्स आई हो जाएगा वो, बट एन टाइम्स हो जाएगा नहीं, क्योंकि बेसिकली ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता, लेकिन अपन लोग इंट्यूटिवली लिख सकते हैं कि ये एन टाइम्स इसके बराबर आएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये एन टाइम्स हो रहा है बेसिकली, एन टाइम्स जो भी एक्स आई की वैल्यू में बराबर डालता जाऊंगा, क्योंकि मेरी ए की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। सिमिलरली मैं एक्स बार में बोल सकता हूँ कि मेरा एक्स बार मीन कांस्टेंट है। सो इसमें अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें अपन लोग ये बोल रहे हैं कि जो मेरा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई, बिकॉज जो मेरी नेगेटिव वैल्यूज है वो भी स्क्वायर हो जा रही है, तो वो जीरो कभी आ ही नहीं सकता बेसिकली, तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। बट यहाँ पे बोला है इफ ए हैज एनी वैल्यू अदर देन एक्स बार, ए की वैल्यू एक्स बार से अलग है, तो अगर लेट्स से वो ए की वैल्यू मैं एक्स बार से अलग ले रहा हूँ, तो इसमें फिर मैं इसको प्रूफ कैसे करूं। One second, let me think. Now we are asked to calculate about sigma xi minus x bar का square. So यार मैं इसको देख तो पा रहा हूँ कि जीरो होगा, but how we can prove it? Sigma xi minus x bar square, okay? सो मुझको पता है कि ये तो एन टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब ये कभी नेगेटिव, ये कभी लेस देन जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लेस देन जीरो हो नहीं सकता, इट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन केस लेस देन इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज जो मेरा ए है वो है, जो मेरा ए होगा वो हो जाएगा सम वैल्यू जो, लेकिन मेरी एक्स आई की वैल्यू चेंज होती है बेसिकली हर टाइम पे, तो एक्स आई और ए हमेशा तो बराबर नहीं होंगे, तो बेसिकली ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, दिस थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिग्मा एक्स आई की जगह लिख सकता हूँ एन टाइम्स एक्स बार, आई कैन राइट इट एन टाइम्स एक्स बार माइनस, मतलब ये मेरा एक्स आई है ना, तो मैं इसको सिग्मा एक्स आई लिख दूंगा, मतलब इसको अगर मैं खोलूं, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, सो इट वुड बी बेसिकली सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 times sigma of x into xi bar
प्लस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। ओके, सो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब इसमें मुझे खोलने की जरूरत भी नहीं है ना, इसमें एक चीज और है। हम इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे को पता है कि जो मेरा सिग्मा एक्स आई होता है वो होता है एन टाइम्स एक्स बार। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो एक्स बार है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई अपॉन एन, इसको लिख सकता हूँ एक्स आई अपॉन एन। तो बेसिकली ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और मेरा एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर कॉमन है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ एक्स आई अपॉन एन, तो एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा में, और डिवाइड बाई एन स्क्वायर होगा तो वो बाहर जाएगा। और मुझको पता है कि मैं सिग्मा कर रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब इसको मैं क्लब कर लूंगा बेसिकली। 1 सेकेंड, इन दोनों को मैं क्लब कर लूंगा, तो आई विल बी गेटिंग दिस थिंग प्लस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, अरे सॉरी, दिस थिंग प्लस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ओके, -2 टाइम्स, इसको मैंने जस्ट खोला है फॉर्मूले को, यहाँ पे मैं एक्स को वापस लिख दूंगा एक्स आई बाई एन, तो हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, तो -2 बाई एन बाहर आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ओके, अभी नाउ व्हाट कैन आई डू इज, यहाँ से मेरे को पता है जो मेरा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आएगा उसको मैं कुछ कर सकता हूँ उसके साथ में। अभी मैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तीनों से कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कॉमन, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, then I will be getting 1 -2 by n plus 1 by n square. So it would be basically 1 minus 1 by n whole square. Okay? लेकिन जो है ये सिग्मा के बाहर आएगा, बेसिकली सिग्मा इतने पे लगा हुआ है। ठीक है, now it is n terms, so basically 1 minus 1 by n square, 1 second, okay, this term would always be less than 1, no? This term would be less than 1, so this term would always be less than sigma xi square, and this thing would be greater than sigma xi square because we know that this thing is always greater than 0. So since this is always greater than 0 and this thing is less than 1, this thing would be greater than 1. Why? Because a is some value, let's say 1, 2, 3, something, it would be something like that, and it is not equal to x bar basically. So this thing is greater than 0 and would be something like 1, 2, 3, 4, something like that. And here we are getting 1 minus 1 by n. 1 by n is something which we are subtracting from 1. So basically this thing is less than 1. And when we multiply something by less than 1, so we will reduce its value basically. So basically what I am saying is, I am saying that this thing is sigma xi minus x bar ka square would be less than xi minus a ka square ka sigma. I hope you got that. You have to just solve it and you will get some value. You have to just think of it. Why? Because we are getting this fraction and this fraction would be less than 1. That's why this thing would be greater than this thing. So basically it is less than xi minus a square. So in second blank we will fill less than. ठीक है, तो I hope समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं अपन लोग 43, 42 पे। If the variance of data is 121, then the standard deviation of data would be. अपने को वेरिएंस दिया हुआ डेटा का, अपने से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, सो इट वुड बी रूट ऑफ 121, सो आंसर वुड बी 11. ओके, सो दिस वाज 42. नाउ मूविंग ऑन टू 43. The standard deviation of a data is dash of any change in origin, but is dash on the change of scale. तो ये जो अपन ने 31 और 32 में प्रूफ किया था उसी को अपने को वर्ड्स में लिखना है बेसिकली। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ओरिजिन के चेंज पे डिपेंड नहीं करता। वाई? बिकॉज हम ओरिजिन को चेंज करके क्या करेंगे, जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज है उसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने देखा है कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, जो कि अपन ने 31 में प्रूफ किया था बेसिकली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन, बट डैश ऑन द चेंज ऑफ स्केल, बट इट चेंजेस ऑन द चेंज ऑफ स्केल, मतलब डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। वाई? बिकॉज अगर मैं अपने स्केल को चेंज कर दूंगा तो मैं बेसिकली मेरे एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब मैं किसी एक्स में, जब मैं अपने एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो 43 है उसमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट, ठीक है, और सेकंड वाले में आएगा डिपेंडेंट। मतलब वो चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है लेकिन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंडेंट, सॉरी, डिपेंडेंट, ठीक। तो ये है मेरा 43। 44 पे चलते हैं। 44 में क्या बोला है, दे आर सेइंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स of deviation of values of the variable is dash when taken about the arithmetic mean. The sum of the one second. The sum of the squares of deviation of the value of the variables is dash when taken about the arithmetic mean. अच्छा, जब मैं इसमें मतलब मैंने वो निकाला था ना, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीडियन, डेविएशन अबाउट मोड, इससे 3 टाइप की वैल्यूज होती हैं। तो अपने को बोला है कि जब अपन लोग डेविएशन को लेते हैं अरिथमेटिक मीन के अबाउट, तब जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, तो वो मिनिमम होता है। मतलब अगर मैं मीडियन के अबाउट डेविएशन लूंगा तो वो ज्यादा आएगा। ये अपन ने जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, तब भी अपन ने देखा था कि जो डेविएशन अबाउट मीन है वो हमेशा डेविएशन अबाउट मीडियन से कम आता है। तो 44 का आंसर होगा मिनिमम, ठीक। ये आप लोग चाहे जो अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आप जाकर भी देख सकते हो, जो डिविजन अबाउट मीडियन आया था वो डिविजन अबाउट मीन से हमेशा ज्यादा आएगा। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट मीन ओनली, इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद दैट, ठीक। सो 45th में देखते क्या बोला है, द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा, द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा इज डैश व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन। जब मैं मीडियन से मेजर करता हूँ तो मीन डेविएशन क्या होता है, मतलब मैंने जो मीन का बताया, मीन का होता है मिनिमम। सिमिलर वे में जो मीडियन का होता है, मीडियन का होता है, मीडियन का आई थिंक मीडियन का लीस्ट होता था शायद, बिकॉज ये तो मेरे को पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ मीन डेविएशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा था, तो बेसिकली स्क्वायर कर रहा था तो वो मिनिमम हो जाता था। लेकिन जो मीन डेविएशन डेटा के अबाउट मीडियन से जब अपने निकाला था, आई थिंक इट वॉज लीस्ट, it was least I guess, why because हाँ it would be least, why because median जो होता है वो होती है मिडिल वैल्यू। तो अपन लोग बेसिकली मिडिल वैल्यू ले रहे हैं, तो इस तरफ भी उतनी वैल्यूज है, इस तरफ भी उतनी वैल्यूज है। सो बेसिकली जब मैं मीन डेविएशन लूंगा तो it would come out to be least and here it is minimum, why because we are squaring the terms। स्क्वायरिंग से क्या होगा, जो मेरे नेगेटिव टर्म्स होंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, तो आई कैन से दैट, मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बिना स्क्वायर वाले टर्म्स, स्क्वायर वाले टर्म्स में स्क्वायर वाले टर्म्स जीतेंगी। वाई बिकॉज when we square the terms, we make negative terms also positive. So basically, since I am not squaring here, so the answer would be least. I hope you understand the concept. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को बोला है कि अपन लोग डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। बट हियर वी आर ओनली टेकिंग द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सो इट वुड बी लीस्ट। I hope you understood it. मतलब I guess that. एंड लास्ट में 46 में मुझे बोला है the standard deviation is dash to the mean deviation taken from the arithmetic mean। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या रिलेशन है वो पूछा है मुझसे फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो मीन डेविएशन के बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को पता है, मैं DI निकाल के लेता हूँ अक्सर, मैंने 6 बार निकाल के। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, अपन ने इसको देखा था। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब हाँ, मतलब दोनों चीज ही होती है, तो इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन। मतलब ये तो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आपको उसको मतलब सोचना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग। greater than or equal to, ओके। सो इसमें बस अपने को क्या 41st थोड़ा सोचना पड़ा था। सो मतलब वो अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली, इसलिए। बाकी इन चारों क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन इजीली डू इट। व्हाट आई एम सेइंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। व्हाई बिकॉज when we change the origin we are just adding some value, और मैंने आपको 31st में बताया था कि जब मैं किसी वैल्यू को ऐड करता हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। ऑन द सिमिलर नोट, जब मैं स्केल को चेंज कर रहा हूँ तो स्केल को चेंज करने पे क्या हो रहा है, स्केल को चेंज करने पे मैं अपने एलिमेंट्स में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली। तो वो स्केल के चेंज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ओरिजिन है उसके चेंज पे डिपेंड नहीं करता है बेसिकली। इसलिए 43 का आंसर आएगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। फिर मीन डेविएशन ऑफ डेटा इज लीस्ट वन मेजर्स अबाउट द मीडियन। व्हाई बिकॉज मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, इस तरफ भी उसके उतनी ही है और
इसके बोथ साइड्स में उतनी वैल्यूज हैं, तो जितनी नेगेटिव होंगी उतनी पॉजिटिव हो जाएंगी। दैट्स व्हाई मीन डेविएशन मीडियन के बाद लीस्ट आता है। और स्टैंडर्ड डिवीजन मीन डेविएशन में मैंने आपको बताया ये कि वो ऐसा रिलेशन होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन कभी भी मीन डेविएशन से कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी लेस देन मीन डेविएशन। सो बेसिकली इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली देखो इस चैप्टर में वो चीज है ना कि अगर आपको ढंग से समझ में आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन मोड क्या होता है, अगर आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस चैप्टर इज मोर ऑन कैलकुलेशन साइड देन ऑन कॉन्सेप्ट साइड। मतलब कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बेसिकली व्हाट यू हैव टू फोकस मोर ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग योर कैलकुलेशंस फास्टर एंड क्विकर, मतलब अच्छे से कैलकुलेशन करना इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली, एंड देन यू कैन इजीली गो थ्रू इट। और जो मैंने आज बताया वो बेसिकली जो पहले अपन ने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस उससे इजी था, बिकॉज इट इज मोर ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू टाइप। सो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है कि आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा, और जो अपन ऊपर किया था उसी का मतलब उसी का स्मॉलर वर्जन अपन ने आज सॉल्व किया है बेसिकली। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। Still, if you are unable to understand some concept or something like that, then you can revisit the video and you can even see my previous sessions to get a better insight on this chapter. So I hope you have understood it. Thank you.